Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I'm your instructor via Newton School, and in this video, that is day 18 of this playlist, data structures and algorithms, we are going to head towards advanced data structure, or you can say non-linear data structure, okay, that are graphs. So you must have heard about graphs. आपने graphs के बारे में सुना होगा और मे बी graphs आपको टफ लगते होंगे. So just bookmark this playlist and graphs बहुत easy हो जाएंगे. Okay, and actually graphs are easy in comparison to other data structures. Okay, so before starting this video, let's just see what is Newton School. Okay, so basically Newton School is an e-learning platform which provides you placement trainings as well as learning courses. Okay, so what they do is they will train you for 6 months by teaching you programming language, data structures and algorithms, and front-end development, back-end development frameworks. So they will make you a full stack developer, and after this they will get you placed in different companies like Snapdeal, Curefit, Xiaomi, Lenskart, Teachment. Okay, so they have a pay after placement program, okay, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. And minimum CTC which they will provide you is 5 lakh, so it is also a good thing. If you want to know more about this program, just come to newtonschool.co and check their pay after placement program and get the most out of it for you. If you are preparing for placement, it is good for you. And not only this, they also have a new initiative these days, that is Launchpad initiative, under which they are providing you free courses for learning of different subjects and different programming languages just for free. You just need to come to newtonschool.co, sign up and start learning by taking any course. Okay, and they will also provide you certificates after completion of courses. Here are quizzes for you so that you can practice after learning. Here is Newton School IDE for you so that you can just practice coding also, because it is the most important thing. And there are different courses for everything like React, Node, different frameworks, development and core subjects and programming languages, data structures, competitive programming. For everything here are free courses. So just come to newtonschool.co and check their Launchpad initiative. Now if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just come to this channel in YouTube and subscribe this channel. I'm posting one video every day so that we can complete our competitive programming and data structures and algorithms playlist. Okay, so here are two playlists for you. First is if you want to learn programming language, so just go for this C++ tutorials from basic to advanced. And here I have explained you everything about C++ and then STL in C++. And then we have already started our DSA playlist. And now in this video, we are going to head towards advanced data structure, you can say, or non-linear data structure, graphs. So आप लोगों ने पहले में भी ग्राफ्स के बारे में सुना हो. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ग्राफ्स फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगनिंग. In this video we will see what are graphs, its representation and different types of graphs. Okay, we will also see some coding part. So what is graph? A non-linear data structure consisting of nodes and edges. Okay, so graph is a non-linear data structure, it is clear. Unlike a stack, queues, linked list, it is not like that, it is non-linear. Okay, fine. Now it consists of nodes एंड एजेस. ये दो चीज क्या होती है? सो एक ग्राफ में आपको टू थिंग्स मिलेंगी, नोड्स एंड एजेस, वेयर नोड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्टिसेस, यू कैन से. ओके, सो वर्टिसेस और एजेस. फाइन. अब ये होते क्या है? एक ग्राफ अगर आप सिंपली देखो तो आपने ग्राफ लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा कि एक नेटवर्क होता है. ठीक है, डिफरेंट, मान लो ये मेरा एक ग्राफ है. अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, तो अब अगर ये नॉन लीनियर है, ये तो मुझे देख के समझ में आ रहा है इस फिगर से. ठीक है, ये जो डॉट्स हैं और यू कैन से सर्कल्स हैं, यू कैन से दीज सर्कल्स आर individual entities of a graph.
ओके, एंड दे आर नोन एज वर्टिसेस और नोड्स यू कैन से, ठीक है। तो एक ग्राफ में ये जो इंडिविजुअल एंटिटीज होती हैं, ठीक है, ये होती हैं तुम्हारी वर्टिसेस और नोड्स, फाइन। नाउ these arcs or these lines which are connecting these individual entities of a graph are known as edges or you can say sides, okay। तो तुम ग्राफ्स में दो चीज ले सकते हो, एक इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है, जो कि एक नोड है या फिर एक वर्टेक्स है, प्लस जो उन इंडिविजुअल एंटिटीज को कनेक्ट कर रहा है वो तुम्हारी क्या है, एजेस और साइड्स इन अ ग्राफ, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट थिंग is known as a complete graph, okay, fine। Graphs are used to represent networks. The network may include paths in a city or telephone network or circuit network। So graphs का यूज कहाँ पे होता है, सिंपली ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ग्राफ्स का यूज बता रही है। ग्राफ्स का यूज डिफरेंट जगह पे, बहुत जगह रियल लाइफ सिनेरियोज में होता है, ठीक है। लाइक यू यूज फेसबुक, सोशल नेटवर्क्स तुम यूज करते हो, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स को यूज करते टाइम तुम सिंपली क्या करते हो, सोशल नेटवर्क में डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट पीपल इन सोशल नेटवर्क एंड यू कैन से दैट ईच इंडिविजुअल पीपल इज अ नोड ऑफ अ फेसबुक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यू कैन से दैट this complete organization has around 1 billion people, okay, or you can say 1 billion nodes, okay। Each individual person is a different entity, okay, that's why each individual person is a different node and they are connected via edges, or you can say they are connected via friend requests or friend edges, okay। so जिन भी दो इंडिविजुअल के बीच ये एज है या फिर फ्रेंड एज है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड। एंड इस तरीके से एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट आपका एक कंप्लीट ग्राफ है, ओके, फाइन। एंड इफ यू सी अ मैप, यू कैन से, ओके, मैप सिंपली, उसमें डिफरेंट कंट्रीज होती हैं एंड डिफरेंट कंट्रीज में, और यू कैन से डिफरेंट सिटीज होती हैं एक कंट्री में, ओके। दिस इज द मैप ऑफ अ कंट्री इंडिया एंड इट हैज डिफरेंट सिटीज, सो यू कैन से दीज डिफरेंट सिटीज आर एंटिटी और नोड ऑफ अ कंट्री, ओके, एंड दीज cities are connected via roads, so those roads will be edges simply। तो इस तरीके से आप ग्राफ को काफ़ी जगह से रिलेट कर सकते हैं और जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो वो इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स में बेस्ड होंगे। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। अब ये जो मेरा ग्राफ था मैंने इसको विजुअलाइज तो कर लिया, अब मैं कोडिंग में इसको या फिर लैंग्वेज में कोडिंग सेक्शन में यूज़ कैसे करूँगा। तो यूज़ करने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि ग्राफ में होते क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फर्स्ट थिंग इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड एज नोड्स। तो सबसे पहला थिंग मुझे जो पता करना है इस ग्राफ के बारे में शुड बी हाउ मेनी नोड्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन माई ग्राफ, जो भी मेरे नोड्स हैं टोटल नंबर। तो यू कैन से दैट एक वेरिएबल मैंने n ले लिया और नंबर ले लिया, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इन माय ग्राफ। सेकेंड थिंग इज अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फॉर्म uv कॉल्ड एज h। अब मेरे ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक नोड और एक वर्टेक्स। नोड मुझे पता चल गया नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक है। दूसरी चीज है एज। एज मेरी एक कंप्लीट एज क्या होती है, दो नोड्स और उसके बीच में एक एज है, मुझे पता चल जाएगा। तो एक फाइनाइट पहली चीज तो होनी चाहिए मेरे पास नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो यू कैन से m इज नंबर ऑफ एजेस, ओके। अब हर एक इंडिविजुअल एज में मेरे पास दो चीजें होंगी, दैट कैन बी u एंड v, ओके, वेयर यू कैन से दैट u एंड v are connected via edge,
ओके, सो अब मेरे पास 3 थिंग्स एक ग्राफ में इंपॉर्टेंट हो गई हैं, दैट इज n नंबर ऑफ नोड्स, m नंबर ऑफ एजेस एंड फिर m u क्रॉस v things, okay, which will simply tell me that you have a edge between u and v, okay, fine. तो ये एक ग्राफ में मेरे पास 3 थिंग्स होनी चाहिए मुझे एक ग्राफ को बिल्ड करने में अपने कोडिंग सेक्शन में, ठीक है, और यू कैन से दैट दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ, फाइन. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट ग्राफ इन आवर कोडिंग सेक्शन? ओके, तो तुम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे कोडिंग में? लाइक यू आर राइटिंग सम कोड, तुम्हें ग्राफ का सिनेरियो दिया गया है कि तुम्हें इनपुट में ग्राफ लेना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है और तुम्हें इनपुट में ग्राफ मिल रहा है, तो वो इनपुट में तुम्हें क्या क्या देगा? दैट इज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ नोड्स, m नंबर ऑफ एजेस एंड फिर m एंटिटीज देगा u और v के, जहां पे तुम्हें पता चलेगा कि u और v के बीच में एक एज है. अब तुम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो कोडिंग सेक्शन में? सो देयर आर 2 ways, adjacent matrix and adjacency list, adjacency matrix and adjacency list, okay. so अब इन दोनों चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट थिंग देखते हैं adjacency matrix. एज द नेम सजेस्ट, मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है. मैट्रिक्स होती क्या है? एक 2D एरे, यू कैन से, ओके. तो अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है वो सिंपली देखते हैं. फर्स्ट थिंग, ठीक है, सपोज यू हैव अ ग्राफ जिसमें तुम्हारा, मैं इनपुट डेटा लिख रहा हूँ एक ग्राफ का, ठीक है, मैं एक ग्राफ यहाँ पे बिल्ड करता हूँ. नोड 1 और 2 के बीच में एक एज है, 1 और 3 के बीच में एक एज है, ओके, 3 और 4 के बीच में एक एज है, और यू कैन से 2 और 3 के बीच में भी एक एज है. सो दिस इज माई सिंपल ग्राफ. अब मैं इसका इनपुट डेटा लिखता हूँ, ठीक है, अपने फर्स्ट ग्राफ का. टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर 4, टोटल नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4, तो इज इक्वल्स टू n, m इज इक्वल्स टू 4. अब मैं 4 एजेस लिखूँ अगर यहाँ पे, तो 1 2 2 3, ओके, देन 3 4 एंड 1 3, ये मेरी 4 एजेस हो गई, ठीक है. अब मुझे इस डेटा को एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करके रिप्रेजेंट करना है. सो हम कैसे करते हैं? हम एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, n क्रॉस n की वैल्यू कितनी है? 4. सो वी विल मेक अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, ओके, फाइन. दैट इस इंडेक्स को मैं क्या बोल दूं? अगर 1 बोल दूं, 2 3 4, इस इंडेक्स को 1 2 3 4, ठीक है. नाउ मेरे पास 4 एजेस हैं, ठीक. फर्स्ट एज इज 1 2. सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज, मैं फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम को 1 बना दूंगा, ठीक है. सेकेंड एज इज 2 3, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम को 1 बना दूंगा. 3 4, थर्ड रो के फोर्थ कॉलम को 1, एंड 1 3, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम को 1, एंड आई विल मेक ऑल अदर शेल्स एज 0. नाउ इफ आई विल इटरेट इन दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यू कैन से, तो जैसे ही मुझे एक कॉलम मिलेगा 1, दैट इज a ऑफ i j इज 1, a 1 2. सो आई कैन से कि 1 और 2 के बीच में मेरी एक एज प्रेजेंट है, ओके, सिंपल. अगेन मुझे एक कॉलम मिला a 1 3 एज 1. सो आई विल से कि मेरी 1 और 3 के बीच में एक एज प्रेजेंट है, ओके. सिंपल सा होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस इट इज गोइंग टू टेक. दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर. n स्क्वायर स्पेस ये लेना चाहेगी, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स. सो ऑब्वियसली मैक्सिमम साइज मैट्रिक्स वी कैन मेक इज अराउंड 10⁻³ मल्टीप्लाइज 10⁻³ इन केस ऑफ 2D मैट्रिक्स, ठीक है. तो अगर n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारी 10⁻³ है, देन यू कैन यूज एडजेसेंसी मैट्रिक्स. अदरवाइज होगा क्या? अगर तुम्हारे n की वैल्यू 10⁻5 है तो तुम मैट्रिक्स बनाओगे 10⁻5 इंटू 10⁻5, एंड दैट साइज वो एक बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स डज नॉट अलाउ दिस, ओके.
In that case we will use optimized version for space, that is adjacency list. ठीक है, तो adjacency मैट्रिक्स तुम्हारी छोटे ग्राफ्स के लिए यूज हो सकती है, बड़े ग्राफ्स के लिए टू ऑप्टिमाइज्ड स्पेस वी यूज एडजेसेंसी लिस्ट. अब वो कैसे करते हैं अब वो देखते हैं. ठीक है, नाउ एडजेसेंसी लिस्ट होती क्या है. लिस्ट हमने पहले पढ़ा था कि लिंक लिस्ट जैसा कुछ होता है. ठीक है, जहां पे एक लिस्ट बनती जाती है. ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है. सिंपली सपोज मैं अगेन एक ग्राफ बनाता हूं 1 2, मैंने सेम ग्राफ बनाया, यहां पे डेटा लिखता हूं n = 4, m = 4, 1 2 2 3 1 3 and 3 4. These are my edges. सिंपल. अब मैं एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाता हूं. मैं क्या करूंगा, एक यू कैन से दैट आई कैन टेक वेक्टर ऑफ वेक्टर. मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा. ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर में फिर मैं क्या स्टोर कराऊंगा, फर्स्ट वेक्टर जो होगा मेरा. ओके, और वेक्टर ऑफ वेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम सीधे देखते हैं. ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट देखते हैं. You can also use vector of vector in place of adjacency list, but we will see firstly adjacency list. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली 4 इंडेक्स बनाऊंगा, दैट इज n = 4 के इक्वल 1 2 3 4. ठीक है, अब 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे कभी भी कोई भी एज मिलेगी. ठीक है, जैसे मैंने एज में इटरेट करना शुरू किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई फाउंड अ एज 1 2. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज मैं 1 के करस्पॉन्डिंग लिस्ट में क्या स्टोर कर दूंगा 2. ओके, एंड 2 के करस्पॉन्डिंग लिस्ट में क्या स्टोर कर दूंगा 1. ओके, सेकेंड एज इज 2 3, सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज 3 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 2. फिर थर्ड एज इज 1 3 1 3 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग 1. देन लास्ट एज इज 3 4. ओके, अब ये मेरा नोड है, दीज थिंग्स आर माई नोड. ओके, एंड वी कैन इजली से कि 1 की एज मेरी 2 के साथ है एंड 3 के साथ है, 2 की एज मेरी 1 के साथ है एंड 3 के साथ है, 3 की एज मेरी 2 के साथ है 1 के साथ है और 4 के साथ है. ठीक है, और 4 की एज मेरी 3 के साथ है. नाउ यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड स्पेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर से कम स्पेस लग रहा है. You can easily see that. Okay, fine. So अब ये मेरा स्टोर कैसे करूंगा मैंने यहाँ पे लिस्ट तो बना दिया. ठीक है, अब ये चीज़ रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इस चीज़ का सिंटेक्स मैं कोडिंग सेक्शन में देखता हूँ. ठीक है, इन दोनों का सिंटेक्स अभी हम कोडिंग पार्ट में कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ अभी हम कोडिंग सेक्शन में जाके देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो टू न्यूटन स्कूल आईडी एंड राइट अ ग्राफ हेयर. ठीक है, तो मैं पहले अपना इनपुट डेटा लिख लेता हूँ. n = 4 था मेरे पास, m = भी 4 था. एजेस क्या क्या थी 1 3, लेट्स से 2 3 3 4 एंड 1 2. ये 4 मेरी एजेस थी. ठीक है, इनको भी कमेंट आउट कर देता हूँ. ओके, नाउ फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन मुझे क्या करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का. तो आई विल सिंपली राइट एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ n is to n. ओके, एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज फर्स्टली मुझे सारी की सारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स 0 से इनिशियलाइज करनी है. ओके, सो आई कैन डू इट यूजिंग मेमसेट. यहाँ पे मैं एडजेसेंसी लिस्ट का नाम लिखूंगा, वैल्यू जिससे भी इनिशियलाइज करना है, साइज ऑफ. ओके, फाइन. अब मुझे सिंपली क्या करना है, अपनी सारी एजेस में इटरेट करना, दैट इज i = 0 से लेके m तक. ओके, नाउ सपोज x में मेरी कौन सी वैल्यू आई, u और v लेते हैं हम. ठीक है, u = मेरा क्या है 1,
एंड v इज इक्वल्स टू क्या है 3. सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज आई विल मेक u -1 and v -1 is equals to 1. Why I have done -1? क्योंकि मैट्रिक्स में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है 0 से, ओके और मेरे नोट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 से, दैट्स वाई. एंड आई विल डू सेम फॉर ऑल द एजेस. ठीक है, तो ये मेरा था एडजेसेंसी लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन. अब मुझे क्या करना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना है. तो सिंपल से सिंटेक्स देखो, मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, उसमें डेटा कैसा जा रहा है मेरा, इंटीजर टाइप, नेम ऑफ योर एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड राइट नंबर ऑफ नोड्स हियर, जो भी तुम्हारे n है इक्वल n के इक्वल है. ठीक है, फाइन. नाउ तुमने सिंपली किया क्या, इतना सिंटेक्स लिख के तुमने क्या किया, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दी. ठीक है, जिसमें 4 वैल्यूज हैं, 0 1 2 3, 4 इंडेक्सेस हैं. ठीक है, 0 1 2 3, और हर इंडेक्स पे तुम्हारे पास एक वेक्टर अवेलेबल है, जिस वेक्टर में तुम वैल्यूज पुश कर सकते हो. ठीक है, जिससे भी उसकी एजेस है. तो नाउ आई विल सिंपली डू दैट. मैं नंबर ऑफ एजेस में इटरेट करूंगा. ठीक है, सपोज करेंट एज मुझे मिली u एंड v, तो मुझे अब वेक्टर में वैल्यू पुश करनी है खाली. तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ u -1, मैं क्या पुश कर दूंगा, v -1. इट विल सिंपली डू दैट कि मेरे u -1 इंडेक्स में, ठीक है, और यू कैन से u -1 एडजेसेंसी लिस्ट में मेरा क्या पुश हो जाएगा, v -1. तो इट विल टेल कि u -1 की एज मेरी v -1 के साथ है, एंड आई विल डू द सेम फॉर v -1. ओके, नाउ दिस विल कंस्ट्रक्ट माई होल ग्राफ. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, 0 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी एजेस है, मान लो 1 2 और 3 के साथ है, तो वो आ जाएगी इस वेक्टर में. इसके करस्पॉन्डिंग इस इंडेक्स के जितने भी एजेस हैं वो आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वो, इसके करस्पॉन्डिंग वो. ओके, सो दिस वाज माय इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स. अब लास्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड इट्स कंपोनेंट टाइप्स. ठीक है, तो ग्राफ्स भी मेरे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. ओके, सपोज यू हैव अ ग्राफ 1 2 3 4 5 6. These are values of each vertex or node, you can say, and these are edges. Okay, now initially एक edge को अगर तुम देखो तो you can go from 1 to 3 also, you can go from 3 to 1 also. Okay, so you can say that right now your graph is undirected. Okay, but अगर तुमसे बोला गया है कि डायरेक्टेड ग्राफ है, ओके, एंड इन डायरेक्टेड ग्राफ योर एज इज फ्रॉम u to v. ओके, तो तुम्हारी अब एज कैसी बन जाएगी, ऐसी. सिंपली तुम अपनी एज कैसे बना दोगे डायग्राम में, ऐसी कि यू कैन ओनली गो फ्रॉम 1 to 3 एंड सारी की सारी एजेस तुम्हारी डायरेक्टेड हो जाएंगी. ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, तो नाउ यू कैन गो ओनली इन वन साइड, नॉट इन बोथ साइड. सो नाउ दिस ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है, तो ये दो बेसिक टाइप्स थे ग्राफ के. सेकेंड टाइप इज वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, हर एज का कुछ एक वेट होता है. ओके, यू कैन से एवरी एज विल हैव सम वेट. वेट इन द सेंस कॉस्ट ऑफ सेम एज. सपोज ये तुम्हारी सिटीज हैं, ठीक है, एक कंट्री के अंदर ये तुम्हारी सिटीज हैं 1 2 3 5 एंड 6. ठीक है, ये एक कंट्री है और ये तुम्हारी सिटीज हैं. अब 1 से 2 में जाने के लिए तुम्हें मान लो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, और 1 से 3 में जाने के लिए 20 किलोमीटर्स, और यहाँ पे 30 40 60 100 and 90. So now you can say that this graph is weighted graph. Every edge has some weight in it. Okay, और unweighted graphs क्या हो जाएंगे, सिंपली
कि ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी एज का वेट नहीं है, ओके, दैट ग्राफ विल बी अनवेटेड. नाउ थर्ड टाइप इज वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ. सो सिंपली अगर इन वेटेड एजेस को डायरेक्टेड कर दोगे तो योर ग्राफ विल बिकम weighted and directed graph. So these were your types and its components. Okay, so now I hope कि ग्राफ के बारे में आपको all the basic information हो गई है. From next lecture we will see different algorithms of graph, that is traversal of graph, BFS and DFS. And till now subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, and bookmark these playlists. And again visit newtonschool.co and check their pay after placement program and launchpad initiative and get the most out of it. If you are preparing for placement, you can go for pay after placement program. And if you want to learn different techs and core subjects and development, you can go for launchpad initiative. In launchpad you have everything for free, so just come to newtonschool.co and check both of their programs. Thank you guys for watching this video.